Hello everyone, this is the fourth and last video on surface chemistry, and in this video we are going to discuss preparation of colloidal solutions, then properties of colloidal solutions, and then applications of colloidal solutions. As you know, in previous video we have discussed what are colloidal solutions and the types of colloidal solution on different bases. So we have studied types of colloidal solution. Now we will do the preparation of colloidal solution. So there are basically two types of colloidal solution on the basis of the interaction between dispersed phase and dispersion medium. So the first one we call lyophilic salts and lyophobic salts. So first we will see how the lyophilic salts are prepared, then how the lyophobic salts are prepared. So the preparation of lyophilic salts, as I have told you in previous lecture, that lyophilic salts are the salts in which the interaction of dispersed phase and dispersion medium is very easy because they can attract very easily each other. So the colloidal solution in which the dispersed phase and dispersion medium can attract each other easily are called lyophilic salts. It means it is very easy to form a lyophilic salt just by mixing dispersed phase and dispersion medium. For example, if you want to form the salt of starch, so salt of starch can be prepared just by adding some water and starch and mixing it. So this is how you can prepare the lyophilic salt. So there is no difficult method for preparation of lyophilic salts because lyophilic salts are very easy to prepare. So that's it in lyophilic salts. Now the difficult part is the preparation of lyophobic salts. Why? Because in lyophobic salts the interaction between the particles of dispersed phase and dispersion medium is not very easy. So there will be no interaction between the particles of dispersed phase and dispersion medium. Therefore we have to use some special methods for the preparation of lyophobic salts. So let's see all the methods one by one. So we can classify these methods into two types. One is dispersion method and other type is condensation or aggregation method. So first we will discuss dispersion method. First is mechanical dispersion method. So in mechanical dispersion method there is a arrangement that is called colloidal mill. So this colloidal mill consists of two steel discs and the gap between these two steel discs is very small. Now these two steel discs are rotated in opposite direction with the help of a driving belt, and the coarse suspension particles are poured between these two steel discs. Since the gap is very small, the particles of salt will come out from the colloidal mill. Therefore we will get a colloidal solution very easily. Now the next method is called electrical dispersion method. Now this method is very important for us. This is also called Braddock's arc method. So from examination point of view, this method is very important. So in this method we will use two electrodes. Now these electrodes are made of the substance which is the dispersed phase and the dispersion medium, in which these two electrodes are kept, and with the help of a battery current flows through these two electrodes. Now because there is a small gap between these two electrodes, due to this gap a high resistance will be generated between these two electrodes and a large amount of heat will be produced. Due to this large amount of heat, the electrodes will vaporize immediately and then immediately they will condense, because the whole arrangement is covered by a freezing mixture. So because of this freezing mixture, the vapor which is get heated immediately, it is also get cooled and it will condense, and the very small particles of the dispersed phase will appear in the dispersion medium, and that's how the
कोलॉइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोलॉइडल मिल। तो यहाँ पे क्या होता है, दो स्टील डिस्क होती हैं और इनको दो ड्राइविंग बेल्ट की हेल्प से रोटेट किया जाता है। फिर आप क्या करते हो, जो सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो आपके कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, कोर्स सस्पेंशन हम इसमें यूज़ करते हैं, तो काफ़ी कोर्स साइज़ उनका होता है, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है। और आपको पता है साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो बहुत कम होना चाहिए, दैट इज़ अबाउट 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम। तो हम क्या करते हैं, इस रोटेटिंग मिल में क्योंकि दो स्टील डिस्क के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, तो जब हम पोर करते हैं कोर्स सस्पेंशन को और ये रोटेटिंग डिस्क रोटेट करती हैं, तो तुरंत ही जो आपके पार्टिकल्स होते हैं किसके, डिस्पर्स फेज के, वो बहुत फाइन हो जाते हैं और हमको इजीली सॉल्व मिल जाता है। नाउ दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड, जिसको हम कहते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, हम दो इलेक्ट्रोड्स इमर्ज होते हैं डिस्पर्जन मीडियम में। उसी तरीके से आपको अगर किसी दूसरे मेटल का सॉल्व चाहिए तो आप उसी मेटल के क्या यूज़ करोगे, इलेक्ट्रोड्स यूज़ करोगे। तो जनरली मेटल्स के सॉल्व बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता है ये कवर्ड होता है किससे, एक फ्रीजिंग मिक्सचर से। तो होता क्या है, जब भी हम करंट पास करते हैं इस अरेंजमेंट से, तो आपको पता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं। इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैप होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि गैप की वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस की वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आपको पता है H=I²RT। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो जैसे ही यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो मेल्ट होंगे और इतने ज़्यादा हीट की वजह से वो वेपराइज हो जाएंगे। अब जैसे ही ये वेपराइज होते हैं डिस्पर्जन मीडियम में, तो डिस्पर्जन मीडियम में वेपराइज होने की वजह से क्या होता है, ये तुरंत ही कंडेंस भी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर से कवर्ड हैं। तो ये जो टेम्परेचर होता है किसका, डिस्पर्जन मीडियम का, बहुत कम होता है। तो फ्रीजिंग मिक्सचर इसीलिए हम लोग रखते हैं ताकि डिस्पर्जन मीडियम का टेम्परेचर लो रहे और जो भी डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स होते हैं जैसे ही वो वेपराइज होते हैं वो तुरंत ही कंडेंस हो जाएं। और कंडेंस होके उनका जो साइज़ होता है बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होते हैं उनके, जो कि कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स होते हैं। और उस तरीके से आपका एक पूरा का पूरा जो सॉल्व है वो प्रिपेयर हो जाता है। The third dispersion method is called peptization. So in peptization, we convert a precipitate to a colloidal solution by adding a suitable electrolyte to it. And the suitable electrolyte which is added to it is called peptizing agent. तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेप्टाइजेशन होता है, पेप्टाइजेशन भी एक कौन सा मेथड है, डिस्पर्जन मेथड है। और इसमें हम क्या करते हैं, किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट में हम ऐड करते हैं एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट और इसी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। और जब भी हम इस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो इस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से प्रिसिपिटेट कन्वर्ट हो जाता है एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल कि आपके पास अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है और अगर आप इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो ये मेथड है हमारे पास पेप्टाइजेशन। तो ध्यान रखना। तो ये तीन हमारे पास डिस्पर्जन मेथड हो गए। डिस्पर्जन मेथड में हमेशा जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स आर ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। तो ध्यान रखना, बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ब्रेक करके छोटे पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं। कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स पहले से बड़े होते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज कंडेंसेशन मेथड। तो कंडेंसेशन मेथड में प्रोसेस ही अपोजिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम छोटे पार्टिकल्स को कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म करते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इधर मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो उनको हम कंबाइन करके एक बड़े पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं ताकि वो कोलॉइडल रेंज में आ जाएं। तो कंडेंसेशन मेथड, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेथड, वन इज केमिकल मेथड्स एंड देन फिजिकल मेथड्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं। तो केमिकल मेथड्स जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, in this method there will be a chemical reaction with the help of which we can form the particles of colloidal range. So we can use oxidation, reduction, hydrolysis और double decomposition. तो
देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक ऑक्सीडेशन से हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बाय रिएक्शन बिटवीन H2S and Br2 इट विल गिव sulfur and 2HBr. The particles of sulfur are of colloidal range. Similarly, H2S plus SO2 it will form 3S plus H2. Now you can see here oxidation of sulfur is taking place. Similarly, in reduction, generally we use the reduction method for preparation of the salts of metals like AuCl3 with SnCl2 will form 2Au plus SnCl4. So we have found a sol of gold from AuCl3. Similarly, it can also be done by hydrolysis. For example, FeCl3 plus 3H2O. On boiling, it will form ferric hydroxide plus 3HCl. So ferric hydroxide will form a colloidal solution. Now, similarly, by double decomposition reactions, so you can see here As2O3 will react with 3H2S and it will form As2S3. They will aggregate to form the particles of size of colloidal range. So hope you have understood the method of preparation of salts. Similarly, one more method is there, that is physical method. तो इसमें क्या होगा, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें किसी ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो तो डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन सॉल्वेंट उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो जब हम ऐसे सॉल्वेंट में इसको ऐड करेंगे तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या करेंगे, एग्रीगेट फॉर्म करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में। सिमिलरली बाय एक्सेसिव कूलिंग, जैसे किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम एक्सेसिवली कूल कर दें, बहुत ज़्यादा कूल कर दें, तो जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीगेट फॉर्म करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से जो सब्सटेंस आपको मिलेगा, जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आर Bradig's arc method, then the chemical methods, peptidization. These three are most important topics. The next topic is properties of colloidal solutions. So we have already discussed some of the colloidal properties like heterogeneous nature. The colloidal solutions are heterogeneous in nature. Then we have also discussed the visibility of dispersed particles, means the particles of dispersed phase, they are not visible with naked eyes, but they are visible with microscope. So we have already discussed it. Then the stability of the colloidal solutions. So there are two types of colloidal solution, lyophilic and lyophobic. Lyophilic salts are more stable as compared to lyophobic salts. Then filterability, you know that the colloidal solutions cannot be filtered with ordinary filter paper because the colloidal particles are very small in size, so therefore they cannot be filtered with the help of ordinary filter paper. However, they can be filtered with the help of ultrafilter or animal membrane. So we have already discussed these points. Now it comes to color. The color of the colloidal particles depend on the particle size. तो पार्टिकल साइज पे कलर इनका डिपेंड करेगा। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। हेट्रोजीनियस नेचर होता है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उनका, ट्रू सॉल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं। विजिबिलिटी ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल्स जो होती है तो आप उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जबकि आप माइक्रोस्कोप से ज़रूर कोलॉइडल पार्टिकल्स को देख सकते हो। स्टेबिलिटी, तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस की जो स्टेबिलिटी होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, आपको पता है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स। तो लायोफिलिक सॉल्ट्स तो काफ़ी स्टेबल होते हैं, लेकिन लायोफोबिक सॉल्ट्स उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। देन फिल्टरेबिलिटी, तो फिल्टर नहीं हो पाते हैं ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, उसकी वजह से आप फिल्टर नहीं कर सकते इनको ईजिली। द नेक्स्ट इज कलर। कलर क्या होता है इनका, कलर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कलर डिपेंड करता है पार्टिकल्स के साइज़ पे। अब ये कलर पार्टिकल्स के साइज़ पे क्यों डिपेंड करता है उसको हम देखेंगे अभी टिंडाल इफेक्ट में। तो ये टॉपिक्स जो हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्राउनियन मूवमेंट। सो ब्राउनियन मूवमेंट इज द कंटिन्यूअस zigzag मोशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन। सो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस zigzag मोशन होता है।
मतलब जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में, उसमें पार्टिकल्स जो होंगे कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में होंगे। अब इस कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये ब्राउनियन मूवमेंट होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ब्राउनियन मूवमेंट? द रीजन बिहाइंड द ब्राउनियन मूवमेंट इज द अनइवन बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। तो क्या होता है, क्योंकि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होंगे उनमें अनइवन बम्बार्डमेंट होती है, मीन्स कहीं से ज़्यादा कहीं से कम। किसकी बम्बार्डमेंट होती है? डिस्पर्जन मीडियम की। तो डिस्पर्जन मीडियम उनको किसी न किसी डायरेक्शन में पुश करते रहते हैं, एंड ड्यू टू दैट जो पार्टिकल्स होते हैं किसके कोलॉइडल सॉल्यूशन में, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, उन पे अनइवन बम्बार्डमेंट होने की वजह से वो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में होते हैं, और उसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। द नेक्स्ट इज colligative properties. So colligative properties are the properties which depend on the number of particles of the disperse phase. तो disperse phase के number of particles पे ये डिपेंड करेंगे। तो disperse phase के जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, जो आपकी colligative properties होंगी वो उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह, आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उसी तरीके से जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होंगे ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करेंगे। लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस के जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है शो नहीं करते हैं, उनसे थोड़ी सी कम ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दूसरी चीज़ आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज ये शो करेंगे। नाउ देयर इज वन मोर, आई फॉरगेट टू राइट अबाउट इट, दैट इज टिंडाल इफेक्ट। वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। अब ये टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? टिंडाल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट इज पास थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन से जब भी लाइट आप पास करते हो तो उसमें स्कैटरिंग होती है लाइट की, और इसी स्कैटरिंग को हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से हमने शो किया है टिंडाल इफेक्ट। ये टिंडाल इफेक्ट में होता क्या है, यहाँ पे हमने एक लाइट सोर्स दिया हुआ है और एक जो कन्वर्जिंग बीम होती है लाइट की, अगर वो किसी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल से टकराती है तो उसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, उसकी वजह से इसमें स्कैटरिंग होती है लाइट की, और इसी स्कैटरिंग को हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो अगर आप लाइट को देखोगे तो लाइट आपको पता है एक कोन फॉर्म करेगी जिसको आप कहते हैं टिंडाल कोन, क्योंकि ये जो लाइट होगी ये कैसे होगी, कन्वर्जिंग बीम होगी लाइट की, इसकी वजह से कोन फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड टिंडाल कोन। तो इसी स्कैटरिंग को हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। नाउ देयर इज one thing that you have to remember about Tyndall effect, that when the Tyndall effect can be observed, so there are 2 conditions for Tyndall effect। 2 ही conditions में आप Tyndall effect को observe कर सकते हो। अगर ये 2 conditions satisfy नहीं होती हैं तो आप Tyndall effect को observe नहीं कर सकते हो। So these 2 conditions are, the first is that the size of the particles of disperse phase should be greater than the wavelength of the light। तो जो wavelength होगी लाइट की, कौन सी लाइट की, जो इस पे पास हम कर रहे हैं उस लाइट की wavelength से ज़्यादा साइज होना चाहिए किसका, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का। अगर इससे कम हुआ तो आपको टिंडाल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज there should be a large difference between the refractive indices of disperse phase and dispersion medium. So this is dispersion medium. In this dispersion medium there are small particles of disperse phase। तो जो particles होंगे किसके, disperse phase और dispersion medium के, तो dispersion medium और disperse phase में जो refractive index का difference होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा difference होना चाहिए। अगर वो difference बहुत ही कम है तो आपको टिंडाल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखिए, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही आपको टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज टिंडाल इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द
colloidal particles. Now this is a special point. It is observed that the dispersed particles in a colloidal solution exhibit a definite charge. So either it will be positive or negative. तो colloidal particles जो होंगे किसी भी सॉल्यूशन में, उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। सारे पार्टिकल्स में या तो सारे पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज होगा या तो फिर सारे पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि कभी भी जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। एंड ऑल द कोलॉइडल पार्टिकल्स हैव द सेम चार्ज। सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स में सेम ही चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव है तो सब में पॉजिटिव होगा और अगर नेगेटिव है तो सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज होगा। सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे डिस्पर्स फेज के, उन सब में पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर सब के सब में नेगेटिव चार्ज होगा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स, कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें चार्ज होने का रीज़न क्या हो सकता है। सो यू नो दैट देयर मे बी सम इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। और इन इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएट होने की वजह से जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इन इलेक्ट्रोलाइट्स के चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे, कैटायंस या फिर एनायंस, को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेंगे और इस ही एड्जॉर्प्शन की वजह से ये चार्ज एग्जिबिट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोस्मोसिस। सो व्हेनेवर an electric field is applied across a colloidal solution, the particles of dispersed phase move in a definite direction towards a definite electrode. So this process is called electrophoresis. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि कभी भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होंगे वो एक डेफिनेट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, कैथोड की तरफ या फिर एनोड की तरफ। इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन द डिस्पर्स फेज। जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होंगे उन पे जो चार्ज होगा, क्योंकि हमको पता है कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। तो अगर उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और अगर उन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो इसी मूवमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो इलेक्ट्रोस्मोसिस क्या होता है। अगर आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोस्मोसिस समझना आपके लिए बहुत ईजी है। इफ़ बाय सम एक्सटर्नल मीन्स, अगर आप किसी तरीके से क्या कर देते हो, ये जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज के, इनका मूवमेंट रोक देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका मूवमेंट आप रोक लेते हो, किसका, डिस्पर्स फेज का। तो उसकी वजह से क्या होने लगता है, जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्जन मीडियम मूव करने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्मोसिस। व्हेन द movement of the particles of dispersed phase in the electric field is stopped by some means, the particles of dispersion medium will move in a definite direction. This is called electroosmosis. Now the next is coagulation. So coagulation means the formation of precipitate. So precipitation और coagulation can be done by different methods, और उसमें से एक मेथड क्या है, by adding suitable electrolyte. जैसे कि आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और क्योंकि सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स में सेम चार्ज होता है, इसकी वजह से जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाते हैं ड्यू टू द सेम चार्ज। अगर आप इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो तो द पार्टिकल्स फॉर्म अ प्रिसिपिटेट। तो यही आपके पास एक मेथड है कि जो आपका चार्ज है, आप अगर उसको न्यूट्रलाइज कर दो तो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की वजह से जो पार्टिकल्स होंगे किसके, डिस्पर्स फेज के, वो एक जगह पे जमा हो जाएंगे और एक प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेंगे। तो जब भी आप कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, उस सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करने की वजह से इनका जो चार्ज हो जाता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसकी वजह से वो प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं। तो यहीं से हमारे पास एक रूल आता है, दैट इज हार्डी-स्कूल्स रूल। व्हाट डज हार्डी-स्कूल्स रूल से? इट सेज दैट द ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द अपोजिटली चार्ज्ड आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू द कोलॉइडल सॉल्यूशन, फास्टर इज द कोएगुलेशन। मतलब
कि अगर जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, सपोज हमारे पास जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, अगर उनमें पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इनके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के साथ क्या करेगा, कंबाइन होकर उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये यही कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट का जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल होता है कि अगर डिस्पर्स फेज पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का निगेटिव चार्ज, या फिर डिस्पर्स फेज पे अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव चार्ज उससे अट्रैक्ट होगा। तो इसी अपोजिट चार्ज पार्टिकल का जितना ज़्यादा वैलेंसी होगी उतना ही ज़्यादा जल्दी ये क्या होगा, कोएगुलेशन होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका चार्ज होगा उतनी जल्दी वो न्यूट्रलाइज होगा और उतनी जल्दी वो प्रिसिपिटेट फॉर्म कर देगा। सो दिस इज हार्डी-स्कूल्स रूल। द नेक्स्ट इज फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू क्या होती है, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू प्रिसिपिटेट अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके हम उसको प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। तो मिनिमम कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जिससे हम उसको प्रिसिपिटेट फॉर्म कर सकें, तो उसको हम कहते हैं फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। ये फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन जनरली आपको पता है इट इज़ इन मोल पर लीटर, बट यहाँ पे फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू जो होती है दैट इज़ इन मिली मोल पर लीटर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, इट इज़ इन मिली मोल पर लीटर। तो जो फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू होती है उसको हम मिली मोल पर लीटर में लेते हैं, न कि मोल पर लीटर में। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के अलावा आपके पास कुछ और भी मेथड्स हैं जिससे आप किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रिसिपिटेट फॉर्म कर सकते हो, जैसे बाय बॉइलिंग। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए बॉईल करते हो तो उसकी वजह से इसका जो चार्ज होता है, ये जो एड्जॉर्ब पार्टिकल्स होते हैं इसके सरफेस पे चार्ज पार्टिकल्स, इनको लूज कर देता है और प्रिसिपिटेट फॉर्म कर सकता है। दूसरा है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट डायलिसिस में क्या होता है, एक डायलिसिस का प्रोसेस होता है। अगर आप इसको बहुत लंबे टाइम के लिए करोगे तो परसिस्टेंट डायलिसिस में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे सेपरेट हो जाते हैं। और इसकी वजह से अगर आप डायलिसिस बहुत लंबे टाइम के लिए कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंट डायलिसिस। तो परसिस्टेंट डायलिसिस में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और आपके पास केवल कोलॉइडल पार्टिकल्स बचेंगे। और क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं है तो वो एक जगह पे प्रिसिपिटेट हो जाएंगे और आपका कोएगुलेशन हो जाएगा। द नेक्स्ट इज बाय एडिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स। तो अगर दो अपोजिटली चार्ज्ड सॉल्ट्स को आप ऐड करते हो, तो एक में अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे में निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो दोनों के दोनों डिस्पर्स पार्टिकल्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और वो फिर प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेंगे। और आपके पास एक और मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज मूव टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रोड। तो एक ही इलेक्ट्रोड की तरफ हम मूव करते हैं तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे डिस्पर्स फेज के उसी इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएंगे और उसी इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएंगे, तो दैट इज फॉर्मिंग अ प्रिसिपिटेट। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स क्या होता है कि आपको पता है कि जो लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं और वो इजीली क्या फॉर्म कर लेते हैं, इजीली एक प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं। तो उनको प्रिसिपिटेट फॉर्म करने से अगर हम रोकते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स। तो जो लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं दे आर ऑलरेडी वेरी स्टेबल, तो हम क्या करते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स में लायोफिलिक सॉल्ट्स ऐड करते हैं। और क्योंकि हम लायोफोबिक सॉल्ट्स में लायोफिलिक सॉल्ट्स ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होंगे लायोफोबिक सॉल्ट्स के, दे are surrounded by a layer of lyophilic salts and that's how they are protected from coagulation। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट्स हम ऐड करते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स में, उससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होंगे डिस्पर्स फेज के लायोफोबिक सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे
उसके अराउंड जो लायोफिलिक सॉल्ट होगा वो क्या कर देगा, एक लेयर्स फॉर्म कर देगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देगा और उसको बचा लेता है किससे, कोएगुलेशन से, क्योंकि आपको पता है लायोफिलिक सॉल्ट्स आर वेरी स्टेबल। तो द लायोफिलिक सॉल्ट विच इज एडेड टू द लायोफोबिक सॉल्ट फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज नोन एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड। तो जो लायोफिलिक सॉल्ट आप ऐड करते हो लायोफोबिक सॉल्ट में उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसको कोएगुलेशन से बचाने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज गोल्ड नंबर। So the gold number of a protective colloid is the minimum amount of protective colloid added to 10 ml of the colloidal solution of gold when 1 ml of 10% solution of NaCl is added to it। तो आपको ध्यान रखना है गोल्ड नंबर क्या होता है, किसी भी प्रोटेक्टिव कोलॉइड का गोल्ड नंबर वो मिनिमम अमाउंट होता है जिसको आप ऐड करते हो किसमें, गोल्ड के कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो मेरे पास 10 ml गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। 10 ml गोल्ड के कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम पहले क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 1 ml NaCl का सॉल्यूशन, जो कि 10% NaCl सॉल्यूशन होगा, उसको ऐड करेंगे। तो उसको ऐड अगर हम करते हैं तो आपको पता है वो क्या फॉर्म करेगा, वो एक प्रिसिपिटेट फॉर्म कर देगा। तो इसी को प्रिसिपिटेट फॉर्म करने से बचाने के लिए हमको मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड जो यूज़ करना पड़ेगा, उसी को हम कहेंगे उस प्रोटेक्टिव कोलॉइड का गोल्ड नंबर। द नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। द फर्स्ट इज डायलिसिस। सो यू हैव हर्ड ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस आपको पता है जनरली हम मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं जहाँ पे हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। सो द सेम मेथड इज़ यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन से हमको जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव करनी है, तो उसके लिए एक मेथड डायलिसिस यूज़ होता है। तो डायलिसिस में हम क्या करते हैं, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेंगे। जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी ये स्मॉल साइज पार्टिकल्स को तो पास कर लेती है इसके थ्रू, बट जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स और कोलॉइडल पार्टिकल्स, दे आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू इट। तो हम क्या करेंगे, वाटर इज पास्ड थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सो द impurities will pass with water and only the colloidal particles will remain. So water is passed through this semi permeable membrane and the impurity will come out. So water plus impurity particles, because the particles of impurity are smaller than the colloidal particles। तो क्योंकि colloidal particles का साइज ज़्यादा होगा वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो impurity के particles होंगे वो इजीली वाटर के साथ जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करेंगे और इस तरीके से आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा वो प्योरीफाई हो जाएगा। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज वेरी स्लो, सो टू increase the speed of dialysis we use electrodialysis. So an electric field is applied across this arrangement and this is called electrodialysis, because whenever we apply an electric field the rate of dialysis increases and this process is called electrodialysis. तो ध्यान रखिए, electrodialysis is similar to dialysis। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है इस सेटअप के अक्रॉस, और उससे क्या होगा, जो डायलिसिस होगा वो फास्ट हो जाएगा और ऐसे में हम इस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड दे सकते हैं, क्योंकि डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है, बहुत स्लो होता है। द नेक्स्ट इज अल्ट्रा फिल्टरेशन। एज यू नो दैट द कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्योरीफाइड विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर बिकॉज ऑफ द लार्ज पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो ऐसे में हम फिल्टरेशन की हेल्प से जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा उसको प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू वी यूज़? वी यूज़ अल्ट्रा फिल्टर। सो अल्ट्रा फिल्टर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? अल्ट्रा फिल्टर को प्रिपेयर करने के लिए हम जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, जिलेटिन में हम इसको डालते हैं और
जिलेटिन में डालने के बाद इसको हम ड्राई करते हैं, हार्ड करते हैं, किसके साथ? बाय एडिंग इट इन द फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन। तो उसको हम फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डिप करके फिर उसको हार्ड करते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं, जो पोर्स होते हैं, पोर्स ऑफ द filter paper will reduce in size and then they will be able to filter the colloidal solution। तो जो फिल्टर करते हैं कोलॉइडल पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे, तो इस तरीके से वो कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, जिसको हम रोटेट करते हैं उसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन को डाल के, एंड आफ्टर रोटेशन the impurities will be separated from the colloidal particles. So this method is called ultracentrifugation. The next is the examples of colloids. The colloids around us, जो आपको daily life में colloidal solutions देखने को मिलेंगे, like in fog, mist, rain, ये colloidal solutions हो गए। Similarly food articles, जो food articles होते हैं कुछ जैसे बटर हो गया, है ना, मिल्क हो गया, these are the examples of colloids. Then blood is a very good example of colloid. Then soil, the fertile soil is colloidal in nature. The blue color of sky, as you know that there are some impurity or dust particles suspended in air, so the light scatters from these particles. Due to this the sky appears blue. तो आपको पता होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, उन पे जो लाइट होती है वो स्ट्राइक करती है और उसकी वजह से लाइट की स्कैटरिंग होती है, जिसकी वजह से स्काई ब्लू आपको दिखाई देता है। लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। जब भी कोई भी रिवर फ्लो होती है, आपको पता है कुछ क्ले के पार्टिकल्स, जो मड वगैरह होता है, वो रिवर के साथ मूव करना शुरू करता है। बट क्योंकि वो क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, वो एक कोएगुलेशन फॉर्म नहीं करता है। लेकिन जैसे ही ये जो रिवर होती है वो सी के पास में आती है, सो व्हेन इट कम्स नियर सी व्हाट हैपन्स, तो सी वाटर होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स जब भी इन कोलॉइडल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज होने की वजह से ये जो क्ले के पार्टिकल्स होंगे ये सब डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही नदी सी के पास जाती है वैसे ही डेल्टा फॉर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है क्ले का, क्योंकि जो ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन सी वाटर। तो इस तरीके से डेल्टा फॉर्म होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। So there are so many applications of colloids like in food. So you know that there are so many foods which are colloids. Then medicines. So medicines are also colloidal solutions. Then purification of water. Purification of water, आपको पता है कि water में जो भी impurities होती हैं they are in the form of colloids. So they can be removed by the process of coagulation of colloids. Similarly, sewage disposal. So sewage disposal can also be done with the help of coagulation by electrophoresis. तो जो सीवेज impurities होती हैं जो सीवेज में, उसको आप रिमूव कर सकते हो by electrophoresis. Similarly, the smoke precipitation can also be done by electrophoresis. Smoke precipitation हम कैसे करते हैं, electrophoresis से कर सकते हैं, क्योंकि smoke जो होता है it is also a colloidal solution. तो हम इसको by precipitation इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल रेन। जो क्लाउड्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर along with some dust particles which are having a charge. They may have positive or negative charge. So what do we have to do for artificial rain? We have to use an electrolyte so that the charge of these dust particles is neutralized. तो जब चार्ज इनका न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो रेन अपने आप ही हो जाएगी। The next is in rubber industry. So the latex is the substance which is obtained from rubber tree and from which rubber is obtained. So the latex is a colloidal solution. So these are a few applications. Along with these applications there are so many applications like in leather industry
or in smoke screen, in cleansing action of soaps, etc. The last topic is emulsions. As you know that emulsions are the colloidal solutions of liquids in liquids. So on the basis of that there are two types of emulsions. First oil in water type and then water in oil type. तो आपको पता है कि emulsions जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड में जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम emulsions कहते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स, वन ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल. अगर आप ऑयल में वाटर ऐड करते हो तो वो एक इमल्शन बनाएगा और वाटर में ऑयल ऐड करते हो तो वो भी एक इमल्शन बनाएगा. डिफरेंस क्या है इसमें, ऑयल क्या है डिस्पर्स फेज है, वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम. इन दिस वाटर इज डिस्पर्स फेज, ऑयल इज इन डिस्पर्जन मीडियम. तो डिफरेंस दोनों में इतना है. देन आपको दूसरी चीज़ पता है, ऑयल एंड वाटर, दीज टू सब्सटेंसेज, दीज टू लिक्विड्स आर completely immiscible. They do not mix with each other. So to mix them properly, we use a suitable substance that is called emulsifying agent or emulsifier. So this is how the preparation of emulsions is done. So generally we shake these two substances, the mixture of these two substances vigorously. तो बहुत vigorously आपको shake करना होता है और फिर हम इसमें यूज़ करते हैं क्या, इमल्सीफायर्स. तो इमल्सीफायर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इस इमल्शन को क्या करते हैं, स्टेबल बनाते हैं. क्योंकि ये दोनों मिक्स तो होते नहीं हैं और अगर आप विगरसली इसको शेक भी करोगे कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. तो उसको स्टेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इमल्सीफायर्स. सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इमल्सीफायर्स लाइक सोप्स, डिटर्जेंट्स. सो दीज सोप्स, डिटर्जेंट्स, अगर एट्सेट्रा, these are called emulsifiers. तो आपको ध्यान में रखना है कि जो emulsions होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं. उनको स्टेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं emulsifiers. तो emulsifiers वर्क कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑयल है तो ये ऑयल की ड्रॉप है, इसके अराउंड वाटर होगा. अगर आपको इसमें मिक्स करना है किसको, वाटर को, ऑयल और वाटर को मिक्स करना है, हम यूज़ करेंगे इमल्सीफायर्स लाइक सोप्स. तो सोप को आपको पता है देयर आर टू काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सोप, वन इज हाइड्रोफोबिक एंड अदर इज हाइड्रोफिलिक. तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो ऑयल के साथ मिक्स होगा, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो वाटर के साथ मिक्स होगा. तो इस तरीके से जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स होंगे वाटर में वो स्टेबल होंगे, या फिर अपोजिट, वाटर की ड्रॉपलेट्स जो होंगी ऑयल में वो ज़्यादा स्टेबल होंगे. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.